Good morning, students. In today's class, we are going to do one of the part of speech, conjunction. So, in today's class, we are going to cover these topics: conjunction and classes of conjunction. Okay, so basically there are two classes of conjunction: coordinating and subordinating, and coordinating have four parts. Okay, four types: cumulative, adversative, alternative and elative. So let's discuss about conjunction. Okay, first you look here. Conjunction is made with the help of two words, co and junction. Co means जो combine करता हो, right? So and junctions, हम जंक्शंस देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे बहुत सारी रेलवे लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. सो जंक्शन जहाँ पे वर्ड्स और स्टेटमेंट्स एक दूसरे वी कैन से वर्ड्स और स्टेटमेंट्स जिस वर्ड की हेल्प से जॉइन करते हैं वो कंजंक्शन होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर two sentences or words. So there are few examples. Shri is going to school and Rama is going to the market. So both the sentence Shri is going to school and Rama is going to the market दोनों ही आपस में complete sentence हैं and with the help of and they are joining, right? So and is conjunction here. ठीक है. Shri and Rama are going to school. यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस एक कंजंक्शन की हेल्प से जॉइन कर रहे हैं, राइट? एंड इन नेक्स्ट एग्जाम्पल श्री एंड रमा आर गोइंग टू स्कूल. हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे, श्री इज गोइंग टू स्कूल, रमा इज गोइंग टू स्कूल. बट वाई टू मेक इट डिफिकल्ट? ओके, सो हमने इसको ईजी कर दिया, शॉर्ट कर दिया. सो with the help of conjunction we made sentence like this: Shri and Rama are going to school. So basically conjunction क्या करता है? compact कर देता है चीज़ों को, short कर देता है, आपस में मिला देता है. okay, Riya is some more examples. Riya is not well but she is coming to attend the class. So यहाँ पे भी अलग अलग दो सेंटेंस हैं और जो कि एक कंजंक्शन की हेल्प से जॉइन कर रहे हैं, राइट? एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू मस्ट ईट और यू विल बी वीक. अगेन देयर आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस and they are joining with the help of conjunction, right? अब आता है either you or Hari must attend the meeting. यहाँ पे either और दोनों ही conjunction है, right? दोनों conjunction है and these types of पेयर जब कंजंक्शन पेयरिंग में होती है तो हम उसे कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं. ओके, जब पेयरिंग में होता है कंजंक्शंस जैसे आइदर और, नाइदर नॉर. यू कैन सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो, नाइदर हिज पेरेंट्स नॉर हिज फ्रेंड्स अटेंडेड his birthday party. So neither and nor again in pair. Okay, so both are conjunction and they are correlative conjunction. Okay, next is she visited Delhi as well as Agra, right? So यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी कंजंक्शन है वो ग्रुप में है, राइट?
when there are group of words, then this type of conjunction is known as compound. Okay, compound conjunction, right? इसके और भी एग्जाम्पल हैं, as if, provide of, as soon as, he commands as if he were the boss. Here again there are group of words and this is also compound conjunction. Okay, so now let's start with classes of conjunction. So you have to make this table, but please make it clean, not like me. अच्छे से स्केल यूज करके अच्छे से बनाना. सो कंजंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग. एंड कोऑर्डिनेटिंग के 4 काइंड्स होते हैं, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, alternative and elative. So let's start with the first type of conjunction, coordinative conjunction. So what is coordinative conjunction? Coordinative conjunctions joins two clauses or statement of equal rank. So basically equal rank से क्या मतलब है कि जो भी 2 सेंटेंस होंगे या जो क्लॉज होंगे उनकी इम्पोर्टेंस इक्वल होगी. अपने आप में दोनों ही एक दूसरे में अपनी इम्पोर्टेंस रखते होंगे, एक सेंटेंस दूसरे के अधीन नहीं होगा. सो दिस इज कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल. वी वेंट टू द मार्केट एंड दे केम बैक फ्रॉम द मार्केट. So both sentences, we went to the market and they came back from the market, both are equally important. So both are equally ranked sentences, but with the help of and they are joining together. So this is conjunction. सो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में हमेशा हमें ये बात याद रखनी होगी कि जो 2 सेंटेंस या क्लॉज होंगे वो इक्वली रैंक्ड होंगे, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा. जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा, वी वेंट टू मार्केट एंड दे केम बैक फ्रॉम द मार्केट. हम मार्केट गए और वो मार्केट से वापस आए. तो दोनों ही सेंटेंस अब बिल्कुल डिफरेंट हैं और एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं और इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस काइंड्स. ओके, सो फर्स्ट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इज cumulative conjunction. Cumulative conjunction merely join 2 statements. So basically what cumulative conjunction do? It joins 2 statements or 2 sentences. Like Rani is sick and her younger brother is lazy. So here both sentences are equally important and equally ranked, and with the help of and conjunction they are joining together, right. So basically cumulative क्या करता है, 2 sentences को join करता है. Next is adversative. Adversative express contrast between 2 statement. कंट्रास्ट क्या होता है, जो किसी 2 चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट क्रिएट करता है, कंट्रास्ट को शो करता है. जैसे कि मनीष इज रिच बट ही इज अनहैप्पी. मनीष रिच है फिर भी वो दुखी है. वी यूजुअली थिंक दैट हु इज रिच ही मस्ट बी वेरी हैप्पी, बट इट्स नॉट सेम विद एवरीवन. सो मनीष इज रिच एंड बट ही इज अनहैप्पी. यहाँ पे जो बट है वो कंट्रास्ट शो कर रहा है कि
मनीष भले ही रिच है लेकिन वो दुखी है. ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल. सो नेक्स्ट, एडवर्सेटिव कंट्रास्ट शो करता है बिटवीन टू स्टेटमेंट. जो दो स्टेटमेंट आपस में कंट्रास्ट करते हैं, एक दूसरे को अगेंस्ट होते हैं एक दूसरे के. Alternative. Next is alternative. Alternative expresses choice between two alternative. Alternative से ही हम समझते हैं जब choice होती हैं हमारे पास, right? So you must reach on time or you will miss the train. या तो तुम टाइम पे पहुंच जाओ या फिर तुम अपनी ट्रेन मिस कर दोगे. So यहाँ पे दो चॉइस हैं, राइट? या तो टाइम पे पहुंचो या ट्रेन मिस कर दो. सो ऑल्टरनेटिव ऑलवेज एक्सप्रेस चॉइसेस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव. ठीक है? एंड बोथ सेंटेंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. इलेटिव एक्सप्रेस अ रीजनिंग. इलेटिव हमेशा कारण को प्रकट करता है. Like you can see in someone must have called for I heard the phone ringing. यहाँ पे जो कारण है वो स्पष्ट हो रहा है. with the help of for कि किसी ने कॉल किया इसीलिए मुझे रिंग सुनाई दी. अगर किसी ने मतलब कारण है कि उसको रिंग क्यों सुनाई दी, क्योंकि किसी ने कॉल किया. सो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के जितने भी 4 टाइप्स हैं, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव, इलेटिव, ये डिफरेंट चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं. बट एट द सेम टाइम इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो इक्वली रैंक्ड होते हैं और इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. सो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जॉइंस टू स्टेटमेंट्स क्लॉज सच दैट वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर. ओके, सो हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में जो सेंटेंस या क्लॉज होते हैं वो इक्वली रैंक्ड होते हैं. बट इन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इट इज़ टोटली डिफरेंट, दैट वन स्टेटमेंट और क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन द अदर वन. ओके, सो एक सेंटेंस या क्लॉज दूसरे सेंटेंस या क्लॉज पे डिपेंड करता है. एंड दिस इज अबाउट सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. सो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. दिस इज नॉट बेसिकली इट्स टाइप्स बट इट्स कैटेगरी. ओके, सो कैटेगरी में आता है टाइम, रीजन, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन एंड कंपैरिजन. ओके, सो लेट्स लुक. I entered inside after a teacher left. यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है. जैसे कि I entered inside after the teacher left, राइट? कि मैं तब अंदर गया जब टीचर वहाँ से बाहर निकल गया, राइट? सो यहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है. सो आफ्टर हेयर इज एक्सप्रेसिंग टाइम, कि किसके बाद गया, राइट? सो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ टाइम शो हो रहा है. So this is subordinative category of time, right? Next is I did not go to school because I was not well. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि reason show हो रहा है, right?
और रीज़न हमें कौन सा कंजंक्शन हेल्प कर रहा है शो करने में? बिकॉज, राइट. सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था. बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मैं ठीक नहीं था, मैं स्वस्थ नहीं था, राइट. तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि मैं स्कूल नहीं गया था, तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे? तो उसको कारण बताया यहाँ पे उसने, आई वॉज नॉट वेल. सो दिस सेंटेंस एक्सप्रेस रीजन, इट शोज रीजन कैटेगरी ऑफ subordinative conjunction. Next is work hard so that you achieve your goals. So यहाँ पे भी दोनों जो सेंटेंस हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. वर्क हार्ड, मेहनत करो, so that you achieve your goal. So here so that is conjunction here. एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेहनत करो तभी तुम्हें तुम्हारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा. तो यहाँ पे ये पर्पस शो कर रहा है, राइट. इन दिस सेंटेंस वी कैन सी द सो दैट इज एक्सप्रेसिंग पर्पस ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, राइट. हार्ड वर्क क्यों करो? ताकि तुम अपना गोल अचीव कर लो. सो इट शोज पर्पस. नेक्स्ट इज शी वॉज सो वीक दैट शी कुड हार्डली वॉक. सो इन दिस सेंटेंस शी वॉज सो वीक, ये सेंटेंस शी कुड हार्डली वॉक इस पे डिपेंड करता है. एंड दैट हेयर इज कंजंक्शन. ठीक है. सो इसमें हमें क्या शो हो रहा है? रिजल्ट, कि वो इतनी वीक हो गई कि वो मुश्किल से चल भी नहीं पा रही थी. सो इन दिस सेंटेंस दिस कंजंक्शन इज शोइंग रिजल्ट, कि वो इतनी वीक हो गई कि वो चल भी नहीं पा रही थी. उसका क्या रिजल्ट रहा उसके वीक होने का? कि वो चल भी नहीं पा रही थी. आई शैल कम टू योर प्लेस इफ यू विल जॉइन मी टू द पार्टी. मैं तुम्हारे स्थान पे तुम्हारे साथ चलूंगी अगर तुम मुझे पार्टी में ज्वाइन करोगे. सो यहाँ पर हमारा क्या शो कर रहा है सेंटेंस? कंडीशन. उसने कंडीशन रखी है उसके आगे, राइट, कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर पर तभी मैं तुम्हें पार्टी में अच्छा. इस सेंटेंस में कंडीशन शो हो रही है कि आई शैल गो टू योर प्लेस, मैं तुम्हारे घर चलूंगी, इफ यू जॉइन मी टू द पार्टी, अगर तुम मुझे पार्टी के लिए ज्वाइन करोगी. सो इन दिस सेंटेंस द कैटेगरी ऑफ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन इज शोन हियर इज कंडीशन. ओके. सो इफ इज कंजंक्शन हियर. आई एम टॉलर देन ही इज. सो यहाँ पे भी जो आई एम टॉलर ये सेंटेंस भी इस पे डिपेंड करता है, राइट. सो हेयर देन इज कंजंक्शन अगेन एंड इट इज showing comparison, right. So this is showing the category of comparison of subordinative conjunction. So I hope अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शन क्या होता है. अ वर्ड दैट जॉइंस टू sentences or two words together. Okay, and there are two classes of conjunction. First one is coordinative and second one is subordinative. Coordinative conjunction क्या होता है? Coordinative conjunction
में दो सेंटेंस जो जॉइन करते हैं वो इक्वली रैंक्ड होते हैं, यानी कि इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड इन सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो सेंटेंस होते हैं या क्लॉज होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हैज़ four kinds. The first is cumulative, second is adversative, and alternative and elative. Okay, and जो क्यूमुलेटिव है वो एक्सप्रेस करता है मेयरली जो सेंटेंस होते हैं उनको ज्वाइन करने का काम करता है। एडवर्सेटिव कंट्रास्ट जो शो करता है बिटवीन टू स्टेटमेंट और टू सेंटेंसेस। एंड ऑल्टरनेटिव चॉइस एक्सप्रेस करता है, चॉइस देता है बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। एंड इलेटिव एक्सप्रेस करता है रीजनिंग यानी कि कारण। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजंक्शन एंड कंजंक्शंस, क्लासेस ऑफ कंजंक्शन। इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ conjunction versus relative pronoun and relative adverb. So please watch this video and fare out these notes in your English grammar notebooks. Thank you. Have a good day, students.